Hello Sagittarius people, you are much welcome to my channel that is Tarot by Neha Sharma. This is Neha Sharma and I hope you are doing good and staying safe at home. That जैसा कि आप देख सकते हैं that reading going to be a sun sign reading. So you have to check out your date of birth, and if you are Sagittarius, that video is for you. And if your loved one, your friend or relative are Sagittarius, also you can watch this video for them. And yeah, so let's start. Before starting, I want to tell you that reading would be collective general reading. It means that a reading could be resonate or could not be resonate with you, but most of the people, what I'm getting the emails, the feedback, they are saying that most of the readings are resonating with them. So I am very thankful to them for sending all the emails, love, inspiration and motivation. So thank you so much guys. Please keep emailing me, please keep sending your feedback to me. It motivates me a lot. Thank you so much for this. So लेट्स स्टार्ट एंड आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने कुछ कार्ड्स पहले से ही निकाल के शफल करके निकाल के रखे हुए हैं सेजिटेरियस के लिए. सो दैट रीडिंग वुड बी टाइमलेस. तो आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे दैट रीडिंग विल बिलोंग्स टू यू ओनली. आप जब भी ये देखेंगे, चाहे कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये रीडिंग आपके लिए ही होगी. ठीक है. तो ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं उसमें से एक मेजर आर्काना कार्ड है, इनर वॉइस. एक और मेजर आर्काना कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन. और एक रेनबो फ्लावरिंग कार्ड है. इट्स अ क्वीन ऑफ रेनबो. So very beautiful card I got for you guys. And with these cards I can say that very nice card I am getting for you. But before jumping to the reading, I want to tell you a few things about the Sagittarius people. That is a masculine energy. Sagittarius people are having usually a masculine energy. Masculine energy means they are very strengthful, yeah, and their willpower very strong. They are very passionate people. Also they are usually inspiration for the other people. ये लोग बहुत ही लीडरशिप वाला इनमें एक क्वालिटी होता है. They used to lead people, they used to inspire other people, right? They are very confident people. Of course they are very courageous people. Yeah, of course they are very dominating too, because they are a born leader. So they do have that quality to lead other people. So the domination comes very naturally. Aggression, these are the qualities of Sagittarius people. They are a fire sign. फायर साइन जो होता है अपने आप में बहुत पैशनेट होता है, बहुत ही जस्टिस वाला होता है. उनको गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है. दे आर वेरी डेडिकेटेड पीपल. ये लोगों के लिए बहुत दिल से काम करते हैं, लेकिन अगर इनजस्टिस होता है तो वो बिल्कुल इमीडिएट ब्लंटली उनको बताते हैं. और अगर इनकी एक्सपेक्टेशन, ये दूसरों को इतना देते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन जब इनको होती है और वो चीज़ नहीं मिलती है तो दे गेट इमीडिएट डिसअपॉइंटेड or they usually react accordingly. So yeah, this is all about the Sagittarius people. So I think the basic thing what I am getting through this card, that yeah, I think you don't like lies, right? So I think some मैनिपुलेशन, सम लाइज आर देयर अराउंड यू. कुछ लोग आपको सीक्रेटली लाई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं. ये हो सकता है, मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं. शायद लोग आपको झूठ बोल रहे हैं, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ तो इल्यूजन सा, कुछ तो कर्टन कुछ पर्दा सा गिरा हुआ है जो कि आपको दिख नहीं रहा. हो सकता है आप कुछ अंधा विश्वास सा कर रहे हैं कुछ लोगों के ऊपर. आप, मुझे लग रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, यू आर टारगेटेड. यू आर फीलिंग लाइक पीपल आर आफ्टर यू टू गेट समथिंग आउट ऑफ यू. सम काइंड ऑफ टारगेट दे आर मेकिंग टू यू. एंड आई थिंक यू आर एट वेटिंग स्टेट. मुझे लग रहा है कि आप किसी एक वेटिंग स्टेट पर हैं. दैट वेटिंग स्टेट कुड बी अ लव रिलेशनशिप,
दैट वेटिंग कुड बी फॉर अ गुड जॉब, गुड अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको बाहर कहीं सेटल होना है, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ योर कंट्री। सो it is possible that you are waiting for the good time to come in your life, or you are waiting for the deal to crack, or maybe you are waiting for some case to sort out, some legal case. So these things are, I can sense that you are going through some waiting thing. So yeah, as you have that card, so आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं। अभी तो मेरी रीडिंग शुरू हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जो वेटिंग कर रहे हैं, इट्स वर्थ वेटिंग, बिकॉज यू आर गोइंग टू क्रैक वॉट एवर यू वॉन्ट. सो या, अनदर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर सम कन्फ्यूजिंग स्टेट. आपको है ना इतना सारा दिमाग में चल रहा है, ये भी वो भी ये भी वो भी, वो उस वजह से ना आप सिर्फ एक वेटिंग स्टेट में हो सकता है. एक तो ये कि आपने एफर्ट कर दी और आप वेट कर रहे हैं. एक वेटिंग स्टेट वो होता है कि आप सिर्फ प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि अब मुझे ये काम स्टार्ट करना है, अब मुझे ये चीज़ इनिशिएट करनी है, बट आप कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं. दो यू आर वेरी मतलब बोलते ना कि इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द क्रिस्टल क्लैरिटी इज देयर. आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा है. जो सेजिटेरियस होते हैं उन लोगों का क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत क्लियर होता है, लाइक बहुत स्ट्रांग होता है. दे नोज थिंग कि हाउ इट वर्क्स, हाउ दे पीपल आर, वो लोग कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है, मुझे डील कैसे करना है. अगर आप कहीं सीधे रास्ते जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत में हूँ मैं, तो इमीडिएट आप एक्शन लेंगे. ऐसा नहीं सोचते कि आपको सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि चलो अब तो इतना आ ही गए, चलते रहते हैं, देखते क्या होता है. ऐसा नहीं, आपको लगता है तो आप यू टर्न इमीडिएट ले सकते हैं. यू आर इनफ दैट विजडम एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड. बट अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि दो यू हैव ऑल द क्लैरिटी, in your mind, you are a good observer. आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप वेटिंग स्टेट पर हैं. You are not making much effort which are needed. So I would like to say that आप सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स करना शुरू कीजिए. मुझे लगता है आप इसको जितना ज़्यादा डिले करेंगे, हैंग ऑन करेंगे कि चलो चल रहा है, देखेंगे फिर देखेंगे, उतना ही आपका जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ता जाएगा, और उतना ही आपको जो सक्सेस मिलने वाली होगी, जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली होंगी, वो और ही लिंगर ऑन होंगी. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ स्टार्ट एक्टिव, प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग एक्शन, बेटर टू से. सो आई थिंक आप एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि शायद आप कुछ स्टेट पे ऐसे भी हैं कि यू आर कटिंग कॉर्ड्स. आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट इनफ और मोर. I think it's not enough for you. It is not serving you anymore. It could be a person, it could be a relationship, your love relationship, it could be some career wise. आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा सर्व नहीं कर रही है, आई थिंक इट शुड एंड नाउ. तो आप शायद से उस स्टेट पे भी हैं कि आप अपनी जो कॉर्ड्स है वो कट कर रहे हैं, आप अपने जो रिश्ते हैं वो तोड़ रहे हैं उन चीज़ों से. तो इट्स फेयर इनफ, यू नो, बिकॉज आप इतने ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड वाले पर्सन हैं, आप समझते हैं, यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, यू अंडरस्टैंड थिंग्स. सो आई थिंक वॉट एवर इन योर माइंड, टेक एक्शन अहेड, don't keep thinking. So this is one of the suggestion from the universe, from the divine power. And I think मैंने 2 कार्ड्स और निकाले थे. वो था एक तो 2 ऑफ रेनबो, इट्स मोमेंट टू मोमेंट. सेकेंड इज एक्सपीरियंसिंग, इट्स 3 ऑफ फायर. तो आई थिंक ये जो चीज़ है ना, ये मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे बार बार एक सेंस दे रहा है आपके लिए सजिटेरियस, कि आप प्लीज़ लर्न फ्रॉम द वॉट एवर द एक्सपीरियंस यू हैव. लाइक कुछ चीज़ें अच्छी होती है हमारी लाइफ में, कुछ बुरी होती है. परफेक्ट तो किसी की लाइफ नहीं होती है, बट आपको जो भी आपके साथ हो रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे लोग आपको कैसे मिल रहे हैं, आपको इन चीज़ों से ना कुछ सीखना चाहिए. उस चीज़ों को सीख कर, उन लेसन्स को संभाल कर आगे उपयोग करें, अप्लाई करें फॉर द फर्दर डिसीजन मेकिंग. सो वन थिंग आई सेंस दिस फ्रॉम दिस कार्ड, and I think keep going, you know,
मुझे ऐसा लगता है आप एक्शन बहुत कम कर, एक्शन ओरिएंटेड आप अभी नहीं हैं हाल फिलहाल। आप अभी कंफ्यूजिंग स्टेट में, आप अभी एक लेयर्ड तरीके से सोच रहे हैं। अभी सिर्फ आप सोच ही रहे, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन एट ऑल। सो आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट वर्किंग वॉट एवर द प्लान यू हैव। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी की वजह से हर्ट हुआ है, लेट इट गो, छोड़ दें उसको, आगे बढ़ें, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। यू हैव दैट एबिलिटी, यू आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, यू आर अ लीडर। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मुझे, आप सी, यू नो योर वर्थ, राइट? सो कैरी ऑन, गो अहेड एंड जो भी आपको लेसन मिल रहे हैं उनको आप प्लीज़ अप्लाई करें अपनी लाइफ में, उनको आगे बढ़े उन लेसन्स को लेके। आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस है उसमें स्टक होके सिर्फ सोचते ना रहे। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नो बडी इज़ परफेक्ट, नथिंग इज़ परफेक्ट कम्स इन एवरीबडीज़ लाइफ। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती ही रहती, आती रहती है, लेसन सबको मिलते हैं, तो टेक इट ईजी। एंड I think whatever you are going through, no, कि it is these things, this relationship, this job, or this the current situation is not paying, not serving you anymore. So let it be, उसको छोड़ दीजिए। उसको अगर आप कट करने का सोच रहे हैं तो सोचिए मत, उसको कट कर दीजिए उसको। मुझे लग रहा है कुछ पीपल आर गोइंग थ्रू सम डिवोर्स थिंग। हो सकता है कि कुछ तो ऐसी है कि नॉट फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ कोर्स, बिकॉज हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कि अबाउट टू एंड हो गए हैं। अब दे आर थिंकिंग टू डेवलप और रीक्रिएट अनदर अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नई स्कीम, नया प्लान को सोच रहे हैं, तो इट्स ओके। आई थिंक जो एंड हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। तो अगर कुछ रिलेशनशिप एंड हो रही है, लव रिलेशनशिप एंड हो रही है, इट्स ओके, बिकॉज आई थिंक जो आपको वर्थफुल नहीं लग रहा है, आप समझदार हैं, आप समझते हैं, बिकॉज you are a leader, so you have that power and wisdom to take a decision, right? So yeah, I think use your confidence, you are very courageous people। तो आपको ये करेज जो आपकी क्वालिटी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, तो आई थिंक आपको यूज़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको मैं एक ही सजेशन दूंगी कि आप अपने इनर वॉइस पे, अपने आपकी जो अंदर की आवाज़ है उस पर ध्यान दें। डू सम मेडिटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। कुछ अगर आपको ऐसा लगता है तो आप किसी हीलर, कुछ एक्सपर्ट, कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्पिरिचुअली इम्प्रूव करें, हील करें। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम अ रेकी हीलर एज वेल। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी काइंड ऑफ हीलिंग, स्पिरिचुअली, मेंटली। और आपको ऐसा लगता है कि आप फिजिकली थोड़ा सा वीक फील कर रहे हैं तो रेकी के थ्रू वो भी पॉसिबल है। तो यू कैन कनेक्ट विथ मी, बट यू नीड हेल्प, यू नीड टू आस्क हेल्प फ्रॉम द अदर। हो सकता है कि वो आपकी जो सिचुएशन है, आप अपने लेवल पे जो करेंगे वो अगर 40% करेंगे, तो अगर आप किसी की हेल्प लेंगे, कुछ एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे, ये हेल्प कुछ भी हो सकती है, ये प्रेयर्स भी हो सकती है। आपके जो वर्शिप गॉड है उनसे आप प्रेयर करें, मेडिटेशन करें आप, क्योंकि स्पिरिचुअल पीपल हैं। सो गो इनसाइड इन योर सोल एंड लिसन योर वॉइस। सोल कॉल को सुने कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज यू कैन सी दैट कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन। सो आपको आप बहुत वाइज पर्सन, आप समझते हैं कि जो सिचुएशन चल रही है ये रियल नहीं है, ये सही नहीं है। आपको कुछ तो ऐसे लोग आपको चीट कर रहे हैं behind your back, maybe they are manipulating you, they are secretly trying to harm you। So ये जो आपका इल्यूजन वाला जो कर्टन है एक तरह का, उसको हटाएं। आप अपना इनर वॉइस सुने, अपने अंदर की आवाज़ सुने, और आपको जो इंट्यूशन हो रहे हैं उसको फॉलो करें। टेक अ हेल्प फ्रॉम अदर पीपल and blessings are there, because universe in your support, God in your support, you are very generous people. So I think you have to be assured about that you are going to get success, you are going to get the blessings, because that queen of rainbow are the assurance of the success, the
good things are coming in you, the abundance is coming in your way. So yeah, but आपको मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि आप थोड़ा सा, क्योंकि डोमिनेटिंग भी है तो प्राइड वाला एक फैक्टर भी आता है आपके, एक घमंड वाला, तो उसको थोड़ा सा ना करें, क्योंकि क्या होता है कि आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा दूसरों के लिए करते हैं, तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा शो ऑफ करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, किसी को नोइंगली अननोइंगली हर्ट ना करें, अपना प्राइड न रखें, बी डाउन टू अर्थ, तो थिंग्स विल बी मोर इन योर फेवर, राइट? सो लेट्स सी कि इट्स ऑल अबाउट टेरो। जो भी गाइडेंस मुझे समझ आ रहा था फॉर द धनु राशि, आई होप ये आपको रेजोनेट किया होगा, और आपको जो गाइडेंस मैंने बताया है आप प्लीज़ उसको फॉलो करें, क्योंकि ये गाइडेंस होता ही इसलिए है कि आप आने वाली सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील कर सकें। तो अभी मैं ये एंजेलिक कार्ड्स देख रही हूँ, so I would show you that I do have that angelic card, so I want to check this out. What angelic message for you guys, for my dear Sagittarius people? धनु राशि के लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस है, प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच। ओके, सी मैंने जो भी आपको बोला था फर्स्ट कार्ड वही आया है, आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो डायरेक्टली यूनिवर्स सेइंग दैट कनेक्ट विद द नेहा शर्मा, आपको अच्छे गाइडेंस में दे सकती हूँ, हीलिंग कर सकती हूँ। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, बिकॉज यू नीड टू आस्क फॉर द हेल्प विद द एक्सपर्ट पीपल, नो। और स्पिरिचुअली गाइडेंस जो होता है ना, आपको एकदम से इंस्टेंटली आपको बूस्टअप करता है, स्पिरिचुअली मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती, तो यू नीड आस्क and don't feel shy, hesitate in asking help from the other. It could be your parents, you know, आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, कोई स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन है आप जिसे जानते हैं, आपके कोई गुरु हैं आप जिसे मानते हैं, या फिर आपको एक मेडिटेशन, एक कुछ तो ऐसा है कि आप प्रेयर या अपने भगवान से कनेक्टिविटी को, डिवाइन पावर के साथ कनेक्टिविटी को इन्हेंस करें अपनी लाइफ में। इट विल हेल्प यू इन बेटर फ्यूचर। सो अनदर थिंग, जैसे कि मैंने फ्लावरिंग कार्ड के लिए बोला था, द क्वीन ऑफ रेनबो के लिए, कि सक्सेस इज देयर एंड द गुड थिंग इज इन योर वे। सो सी द अनदर कार्ड इज व्हाट? सक्सेस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट सक्सेस इज अश्योर्ड इन योर लाइफ, इन योर कमिंग फ्यूचर। बस आपको एक्शन लेना है, सिर्फ सोचते ना रहे, कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि बिना कुछ बोए तो आपको फल मिलेगा नहीं। अगर आप कोई नई चीज़ शुरू करें, हो सकता है आप कोई कोर्स सीख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर टैरो रीडिंग ही सीख रहे हैं, तो आप अगर वो सीख रहे हैं, बस सीख रहे हैं, बट आप कॉन्फिडेंटली उसको प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो दिस इज़ अ फॉल्ट ऑफ यू, बिकॉज यू विल गेट सक्सेस ओनली व्हेन यू मेक efforts, right? So start working, start taking action. This is the guidance for angels. And the third is card, I like this word, yes. So yeah, अगर आपकी लाइफ में आपकी अभी करेंटली आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आई डोंट नो, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, राइट? सो आपके मन में कोई करेंटली कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं, ये मुझे मिलेगी कि नहीं, ये मुझे बिजनेस में क्या होगा, आने वाला मेरा टाइम कैसा होगा, या फिर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, आपके मन में कोई क्वेरी है, आपने जब भी रीडिंग आप देखें मेरी, तो आप प्लीज़ अपने माइंड में कुछ क्वेरीज फिक्स करें, ताकि आपको उसका आंसर आप रिलेट कर सके, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। मैं आपको 1 to 1 तो नहीं बता रही हूँ, तो अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो द आंसर फॉर दैट क्वेरी इज़ येस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस, एंड yeah, it's all about today's reading. Let's see if I got some Bhagavad Gita message for you, my dear Sagittarius. मेरे धनु राशि के लिए अगर कोई मैसेज मुझे भगवत गीता भगवान की तरफ से मिल रहा है, तो लेट्स सी अ कार्ड फॉर यू गाइस. They are very big cards. I need to arrange in my hands. Okay. So I got a card. The sage card. I would like to read for you guys what is all about the sage card.
What is night for all creature is the time of awakening for the self control. जब आप रात का वक्त होता है तब आप क्या करते हैं? अवेकनिंग. सी आई टोल्ड यू ना कि यू नीड टू कनेक्ट स्पिरिचुअली थ्रू एनी मीन्स. तो ये कार्ड भी आपको, जो सेज कार्ड है वो यही बता रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का क्या टाइम होता है. यूजुअली हम रात को या मॉर्निंग में करते हैं मेडिटेशन या कुछ. तो वो बताना चाह रहे हैं. एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग्स इन इज नाइट फॉर द introspective sage. So it's kind of, you need to be connect with the and awaken yourself spiritually. It will help you for better future. I just love these pictures. Wow, so beautiful. Ganesha, it's a blessings for you guys, my Sagittarius, my dear Sagittarius people. It's a blessing from Ganesha. Congratulations, the success, the yes, everything you got in this reading. So I hope it would help you in taking right decision, in going the right direction. और अगर आपको कुछ पर्सनल रीडिंग मेरे से लेनी है, इफ़ यू रियली वांट टू आस्क सम पर्सनल 1-to-1 क्वेश्चन, यू कैन email me, you can connect with me so that I will give you a personal reading. And I will be very happy and thankful to you कि आप अगर मुझे इसके लिए सिलेक्ट करते हैं. थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस टाइम and stay positive, stay healthy, stay safe. Thank you so much. Love you all.